friends, welcome to my channel Extreme Boy Vihan. I know it has been a long time since I have uploaded a video, but yes, now I am back with a new exciting adventure. Today, we will explore the gift of nature in India, Triun Track. It is situated in Kangra district, Himachal Pradesh. अभी हम अपने होटल से गल्लू देवी चेक पोस्ट तक जा रहे हैं। भागसू से गल्लू देवी चेक पोस्ट तक का फेयर 500 रुपीज है। हम अपना 6 किलोमीटर का ट्रैक टू त्रियुंड वहां से स्टार्ट करेंगे। Let's start by knowing about Triund. Triund Top is a very beautiful hill station with height of 2875 meters. Triund is at the feet of the Dhauladhar ranges. I can see a really beautiful view of the Dhauladhar ranges. The whole track is about 6 kilometers. There is only one stop between the whole trek. It is known as the Midway, which comes after 2.5 kilometers. It takes around 4 to 6 hours to complete this trek. To do this track, you need to prepare things before you go. You need shoes that are comfortable and have good grip because if there is less grip, you will fall down. Second thing is to carry as much as water as possible because while climbing you will feel thirsty regularly. If you are not thirsty, then also you should drink water to gain energy. Third, take energy drinks. I have taken Gatorade, but if you want any other drink, you can have it. Fourth is to take chocolate as it is good for your heart. We had taken dairy milks, Snickers, and Kit Kat, and also took Parle-G biscuits for immediate glucose need. I am traveling with my father. वो ही सारा सामान कैरी कर रहे हैं और हम दोनों अकेले ये ट्रैक कर रहे हैं। शांत वादियों में जब हर फिक्र सो जाए, शहर का शोर कहीं बहुत पीछे खो जाए, हर सांस में ताजगी, हर कदम में नया नज़ारा, ट्रैकिंग है इबादत, प्रकृति का प्यारा सहारा। We can start the track from two places, either the Bhagsunak waterfall or the Gallu Devi checkpost. If we do from Bhagsunag, it will take less time as it will be steep. But if you go from Gallu Devi checkpost, it will take some time as it does not have that much steep climbing at beginning. From our hotel, which is Regenta Hotel, it will take 3 kilometers to Gallu Devi checkpost. Nestled in the serene embrace of the Himalayas, Gallu Devi Temple stands majestically at the elevation of 2130 meters feet above sea level. The problems which you are going to suffer are breathing.
It is obvious as climbing heights can be tricky and suffer breathing problems. That is why it is necessary to breathe with your nose. As climbing, we automatically take breaths from mouth. Secondly, if you take large steps, you will reduce more energy and will have more chances of falling. So, take small steps while doing the trek. No junk food on the track as it will reduce energy and due to climbing heights. No carbonated drinks like Red Bull, Pepsi or Coca-Cola should be drank. As before I have said to take chocolates, it is also a junk food, but as it is a benefit you can take 3 to 4 only, as more chocolates is not beneficial. अभी हम मिडवे पर हैं। इतनी ऊपर पहुंचकर लगता है कि आप बादलों पर हैं। यहाँ आप स्नैक्स और आराम कर सकते हैं। अब हम मिडवे से चल दिए हैं हमारे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। मिडवे से त्रियो टॉप भी दिखता है। इसे देख के लोगों का जोश बढ़ जाता है और हमारे साथ भी यही हुआ। मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि हम नेचर के कितना छोटा पार्ट है और हमें कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसका एक अलग ही मजा है। ये ट्रैक अपने आप में मीडियम कैटेगरी का है, जिसे एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एंड न्यू ट्रैकर्स भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, ज्योग्राफी चेंज होती रहती है। आप देवदार और ओक के सुगंधित जंगलों के बीच शुरुआत करते हैं। हवा साफ और ताजी होती है, जिसमें मिट्टी की खुशबू आती है। रास्ता वैसे अच्छी तरह से मार्क्ड है और छोटे छोटे चैलेंजेस पेश करता रहता है, जैसे पथरीले रास्ते, घुमावदार मोड़ और एक निरंतर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई जो आपके दिल को धड़काती है और आपके लंग्स को काम करवाती है। आपको याद दिलाती है कि आप वास्तव में पर्यावरण के साथ हैं।
वादियों में खो गए हैं हम, शहर का शोर अब है बहुत कम। पहाड़ी रास्तों पे बस चलते जाना है, प्रकृति की गोद में सुकून ही पाना है। रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं, लेकिन मंजिल की तलब और भी बढ़ गई है। ये त्रियुण ट्रैक हमें सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल को पार करना पड़ता है। अब आगे बढ़ने का समय है। चल पड़े हैं कदम, राहें अनजानी हैं, पहाड़ों की ऊंचाई बस यही निशानी है। हर मोड़ पे नया मंजर, हर सांस में सुकून, ट्रैकिंग नहीं है, जिंदगी की कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते और भी कठिन होते जा रहे थे। कभी पत्थर भरी सीढ़ियां, तो कभी पथरीला रास्ता। थोड़ी थोड़ी थकान हो रही थी, लेकिन हर मोड़ पे त्रियुण का नजारा और भी साफ दिख रहा था। हमारा हौसला और भी बढ़ रहा था। अब तो मंजिल पास लगने लगी थी। तो इसी ही बात पर मैं अपनी लिखी हुई कविता सुनाना चाहता हूँ। पहाड़ है इस जहां के, खतरनाक और सुनहरे, मन ऐसा बस पास रह लूं इसके, सिखाती हमें जीना कैसे। हर मोड़ पर नए खुलासे और नई सीख भी। आगे आगे लगे ऐसा जैसे स्वयं ईश्वर ही समक्ष आए हैं धरती पर और बना गए ये पहाड़। मैं तो हूँ एक छोटा हिस्सा, लेकिन हिम्मत और जुनून पहाड़ों से भी बड़े। मुझे लगता है हमने 70% सफर पूरा कर लिया है। अभी तक का रास्ता मुश्किल था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। यही तो त्रियुण ट्रैक की असली खूबसूरती है। हम हर कदम के साथ नए मंजर दिखते हैं और मंजिल का जुनून और भी बढ़ जाता है। कदम कदम पर इम्तिहान लेती पहाड़ियाँ, कभी सीधी चढ़ाई, कभी टेढ़ी घाटियाँ, पर हौसला है बुलंद मंजिल की चाहत में। हर मुश्किल को पार कर जीतनी है ये बाजियाँ।
अब तो मंजिल बिल्कुल करीब है, कुछ और कदम और हम पहुंच जाएंगे। यह आखिरी पड़ाव सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे खूबसूरत भी। हमें अपनी हिम्मत को मजबूत रखना होगा और यह आखिरी चढ़ाई चढ़नी होगी। सामने बस वो खूबसूरत नजारा है जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। लंबा था रास्ता पर हौसला कम न था, हर मुश्किल से सीखा कोई गम न था। मंजिल पे आकर जब पीछे मुड़कर देखा, क्या खूब था सफ़र कोई भ्रम न था। विहान कैसा लगा? अच्छा, हमें कितने आवर्स लगे? 3 आवर 10 मिनट्स में हमने ये त्रिउंड ट्रैक हमने पूरा करा है। हम फाइनली पहुंच गए हैं। इट्स लाइक समथिंग बिग अचीव्ड। ये तो बस एक लंबा ट्रैक था जो आखिर खत्म हुआ। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। मैं इस व्लॉग को अपनी लिखी एक कविता के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जो समय गया वो आता नहीं, जो समय गया वो आता नहीं, पूछो इस जहां से कब नहीं किया उसने इस्तेमाल। कहाँ ये धूप कहाँ ये छाँव, जब समय ही ना बचे तो ये धूप कहाँ और ये छाँव कहाँ। ये धरती और अंबर का फासला, ये धरती और अंबर का फासला समय ही जाने। जो समय की कद्र करे वही ये फासला समझे। मैं तो बस इस समय का एक छोटा हिस्सा हूँ, आज का नया समय हूँ। बच्चे हैं कल के सितारे, लेकिन आज के तारे कहीं फीके पड़ गए हैं। तारे तो कहीं दिखते ही नहीं। शायद ये ही है समय का खेल, जो जाने सिर्फ ईश्वर ही।